Hello students, welcome back to my channel. In today's video, we will see some important questions. These are the mixed questions if you are preparing for the SET and NET examination for the paper 2 English literature. So stay tuned with my channel. Let's see guys the first question. Which of the following is not a part of series of poem called Jejuri written by Arun Kolatkar? Okay, Arun Kolatkar की जो पोम है जेजुरी, और जेजुरी में which is not the part of series. So यशवंत राव, चैतन्य, the priest and the old man. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, that is old man. ये इसका हिस्सा नहीं है. So let's see about the जेजुरी. जेजुरी by अरुण कोलाटकर written in 1976. इसका पब्लिकेशन और अवार्ड विनिंग ईयर पूछा गया है, सो कीप इन माइंड. कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज मिला है 1977 में. मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री है जेजुरी. स्ट्रक्चर इसका है अ सीक्वेंस ऑफ 31 शॉर्ट फ्री वर्स पोएम्स है. कितनी पोएम्स है जेजुरी में? 31 पोएम्स है. एंड जेजुरी a pilgrimage town. We are Maharashtrian. We very well know the importance of Jejuri and where is it is located. So Khandoba Devasthan or the deity Khandoba in the Maharashtra, and Jejuri, it is the pilgrim town located. So a capital urban narrative visiting a religious site, and tone is ironical, observant, secular and sometimes reverent. Let's see themes of these poems. Clash between faith and reality, it is the theme. Spiritual decay and life experiences, India's plural identity, irony of religious tourism, observation of local deities and ritual and hypocrisy. These are the all themes of the जेजुरी's poems. लिस्ट देख लेते हैं एक बार जेजुरी में कौन कौन सी पोएम आती है. तो जेजुरी में टोटल 31 पोएम आती है. द बस, एन ओल्ड वुमन, द डोर स्टेप, द प्रिस्ट, द टेम्पल, ये सारी की सारी फ्री वर्स में लिखी हुई पोम्स है. A low temple, Chaitanya, a scratch song for Vagya, a song for God, mourners, a new Shahane, then the bone, the men from foreign, a clean place, Manohar, Ajamil and the tiger, यशवंत राव. देखो इसमें से ही क्वेश्चन था, इसमें से कौन सा नहीं है. The railway station, a cousin, heart of ruin, the butterfly, a portrait of a lady, a song for madman, the blue horse, the stall, a second fort, चैतन्य टू, जेजुरी, द कंक्लूजन एंड द बस रिटर्न. दीज आर दी, जैसे कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है और उनका गीतांजलि पोएट्री कलेक्शन है स्पिरिचुअल सॉन्ग्स ऑफ रेन जिसे कहते हैं, वैसे जेजुरी भी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में जाने माने अरुण कोलाटकर का पोएट्री कलेक्शन है, शॉर्ट पोएट्री कलेक्शन है जिसमें 31 ये पोम्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी. बर्टोल्ट ब्रेट, कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइनेशन, ये इपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट देते बर्टोल्ट ब्रेट. सो बर्टोल्ट ब्रेट was a rejection of the idea that realism was only the mode of art critique of capitalist. Society should produce. So alienation is, what is alienation? किस सेंटेंस से हमें पता चलता है alienation? The making audience feel that they do not belong. Distancing artistic convention to prevent an emotional catharsis. Scripting unnatural behavior on stage and rejection of capitalism of the market. हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा distancing artistic convention to prevent a emotional catharsis. So, distancing artistic convention, this was achieved through the various theoretical technique use करके इसे अचीव किया जा सकता है. prevent an emotional catharsis को लाया जा सकता है. that broke the illusion of reality, such जैसे direct address to the audience को directly address करके बोलो, visible stake hands, fragmented narratives, आधे अधूरे dialogue, didactic songs. The goal was not to make the audience feel like they don't belong through a sense of critical detachment or not simply the script of it. Next, गुगीवा थियांगो, जैसे लिखा ये है बट इसका प्रोनाउंसिएशन है गुगीवा थियांगो. चेंज द मीडियम ऑफ हिज राइटिंग. पहले तो ये अफ्रीकन राइटर है, उन्होंने इंग्लिश में लिखना छोड़ के अपने मदर टंग में लिखना प्रेफर किया और उनकी मदर टंग थी गुगियो लैंग्वेज. गुगियो लैंग्वेज
Guki language or Gikyu language is a language of Ngugiwa Thiong'o, African writer. So Gikyu उन्होंने नॉवल कौन से लिखे? गुगिवा थियोंगो ने लिखे नॉवेल्स वीप नॉट चाइल्ड, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है. द रिवर बिटवीन 1965, द ग्रेन ऑफ व्हीट, वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो द समरी ऑफ इट, पेटल्स ऑफ ब्लड. एक प्ले भी उन्होंने लिखा है द ब्लैक हेयरमिट. मेमोर उनके कौन कौन से है? राइटर्स प्रिजन डायरी, डिकोलोनाइजिंग द माइंड, द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर, मूविंग द सेंटर, द स्ट्रगल फॉर कल्चरल फ्रीडम, something torn and new, an African Renaissance. Which of the following ancient critic does Alexander Pope comment on exemplary in essay on criticism? देखते हैं. तो इसमें जो essay on criticism अलेक्जेंडर पोप का इंपॉर्टेंट वर्क है, वो वहां पे उन्होंने एंशिएंट क्रिटिक्स डज अलेक्जेंडर पोप कमेंट के कुछ उन्होंने कैरेक्टर्स और उसके बारे में लिखा है, तो जान लेते हैं. इन एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो 1709 में आया था, अलेक्जेंडर पोप प्रेज करते बहुत सारे एंशिएंट पोएट्स की तारीफ वो करते हैं. क्रिटिक एज आइडियल मॉडल ऑफ टेस्ट एंड जजमेंट, दिस इंक्लूड, जैसे वो बोलते हैं एरिस्टोटल के लिए, फॉर हिज पोएटिक्स ऑफरिंग रैशनल प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. होरेस के बारे में बोलते हैं फॉर हिज आर्स पोएटिका, ब्लेंडिंग विट विथ विजडम. Then Dionysius Halicarnassus for the stylistic criticism, Quintilian का for Institute of Oratorio and Comprehensive Book of the Rhetoric पे लिखी गई, and Longinus जो है on the Sublime के writer emphasize emotional impact on literature. Next question, जॉन बनियान का पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है, फर्स्ट ऑब्स्टेकल एनकाउंटर्ड बाय द क्रिश्चियन ऑन द प्रोग्रेस. तो ये एलेगरी है जॉन बनियान की, वेरी फेमस एलेगरी, एंड इसमें बहुत सारे प्लेसेस बताए गए, कैरेक्टर्स आते हैं. तो वो कौन सा पहला गेट है, पहला ऑब्स्टेकल है जिसे पार करके क्रिश्चियन आगे चला जाता है? द स्लो ऑफ डिस्पॉन्ड, वैनिटी फेयर, रिवर ऑफ डेथ और स्वैम्प ऑफ डिजायर. तो करेक्ट आंसर है हमारा द स्लो ऑफ डिस्पॉन्ड. स्लो ऑफ डिस्पॉन्ड क्या है? तो पहले तो जान लेते हैं, ये जो एलेगरी थी जॉन बनियान की पिलग्रिम प्रोग्रेस, ये 1678 में पहला पार्ट पब्लिश हुआ था, और 1684 में 78 में पार्ट 1 एंड 84 में पार्ट 2 पब्लिश हुआ था. इसका जॉनरा ये एलेगरी है, रिलीजियस फिक्शन है, प्रोज नरेटिव है. फुल टाइटल इसका है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज टू कम. ये बहुत पहले इस पे क्वेश्चन पूछा गया, इसका फुल टाइटल पूछा गया था, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज टू कम. आथर है उसके जॉन बनियान, अ प्यूरिटन प्रीचर एंड द राइटर. इसके बारे में कुछ सिंबल और कैरेक्टर जान लेते हैं पिलग्रिम प्रोग्रेस के. स्लो ऑफ डिस्पॉन्ड, डिस्पेयर एंड गिल्ट फ्रॉम द सीन सिंबलाइज करता है. इंटरप्रेटर्स ऑफ हाउस ए स्पिरिचुअल इनसाइट को सिंबलाइज करता है. वैनिटी फेयर वर्ल्डली टेम्पटेशन को सिंबलाइज करता है. रिवर ऑफ डेथ जो है, डेथ बिफोर एंटरिंग द हेवन, इसको सिंबलाइज करता है. एंड सेलेस्टियल सिटी जो है, एक हेवन और सैल्वेशन को सिंबलाइज करती है. कैरेक्टर है इसमें क्रिश्चियन, मेन कैरेक्टर है, ट्रू बिलीवर है, एवरी क्रिश्चियन जैसे जो गॉड में बिलीव करता है. इवेंजलिस्ट है, स्पिरिचुअल गाइड है, डिवाइन मैसेंजर है. देन होपफुल, होप सैल्वेशन. अपोलियन, सैटन है, स्पिरिचुअल एनिमी है. एंड जायंट, डिस्पेयर, डाउट, डिप्रेशन एंड लॉस ऑफ फेथ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द 4 पार्ट ऑफ द 4 क्वार्टरेट्स. बर्टन नॉर्टन, द ड्राई सैल्वेजेस, ईस्ट कॉकर, लिटिल गिल्डिंग. ये 4 पार्ट है टी.एस. लेट कवर के द 4 क्वार्टरेट. और इसके सही जो क्रोनोलॉजी है, पहले आता है बर्ट नॉर्टन, फिर आता है ईस्ट कॉकर, थर्ड नंबर पे है द ड्राई सैल्वेजेस एंड फोर्थ इज लिटिल ग्लिडिंग. सो BET बैट एंड L. सो BET बेट मतलब बर्ड, नॉर्टन, E से ईस्ट कॉकर एंड T से द ड्राई सैल्वेजेस. सो BETL बिटल, ऐसे करके याद रख लो. सीक्वेंस ऑफ 4 इंटरलिंक एक मेडिटेटिव पोम है. थीम एक्सप्लोर होती है इसमें डिविनिटी, ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड रिडेम्पशंस. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखे तो पब्लिकेशन बर्ट नॉर्टन आया था 1936 में, फिर ईस्ट कॉकर 1940 में, द ड्राई सैल्वेजेस 1941 में, लिटिल ग्लिडिंग 1942 में. ऑल 4 आर द लैटर कलेक्टेड एज अ 4 क्वार्टरेट, और इन सबको मिला के 4 क्वार्टरेट बना दिया गया 1942
1943 में, और ये कलेक्टिवली पब्लिश हुआ 1943 में, और इसका नाम रखा गया फोर पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नीड माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर बोन्स the labor of an age in piled stones, or that is hollowed relics should be hid under a star pointing pyramid. These lines written by Ben Jonson, John Milton, Robert Browning, William Wordsworth. So these are the lines. What needs my Shakespeare for his honor bones? John Milton का लाइन है। ये लाइन ली गई है जॉन मिल्टन की पोएम ऑन शेक्सपियर। मिल्टन एक पोएम भी लिखते हैं ऑन शेक्सपियर, उसमें से ये लाइन ली गई है। इसे इपिथैप भी कहा जाता है, एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर। मिल्टन ने इस पोएम को लिखा था इन प्रेज ऑफ शेक्सपियर, सजेस्टिंग दैट शेक्सपियर्स जीनियस एंड वर्क आर मोनुमेंट एंड फार ग्रैंडर देन एनी फिजिकल टॉम और पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेज चौसर ट्रांसलेशन ऑफ रोमान de la Rose? Who among the following praised Chaucer's translation of Roman? देखो चौसर ने रोमान de la Rose को ट्रांसलेट किया था, तो इसकी प्रेज किसने किया था? इचिस्टिस डिस्चाम, पेकाशियो, जीन एमियन एंड गुलिमेडो लोरिस। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ये इस्टाच डिस्चाम जो है फ्रेंच पोएट है, कंटेम्प्रेरी ऑफ चौसर के कंटेम्प्रेरी रहे हैं, जिन्होंने तारीफ करके कहा था कि ये ग्रेट ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द अनफॉलन इज अ बुक ऑफ पोएम रिटन बाय। फॉर द अनफॉलन ये बुक जो है पोएम्स का बुक है, ये किसने लिखा था? टेड ह्यूजेस, सिल्वे प्लाथ, जॉफ्रे हिल और ई हाउसमैन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, जॉफ्रे हिल ने लिखा था। फॉर द अनफॉलन इज क्रिटिकल अक्लेम डेप्थ कलेक्शन ऑफ पोम्स है इंग्लिश पोएट जॉफ्रे हिल का, जो 1959 में पब्लिश हुआ था। टेड ह्यूजेस जो है हॉक एंड रेन एंड द क्रो के लिए जाने जाते। सिल्विया प्लाथ का एरियल एंड द कोलोसस, ये कन्फेशनल पोएट्री लिखती है। ई हाउसमैन जो है वो शॉर्ट साइड लैड के लिए जाने जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय पीबी शेले? द मास्क ऑफ एनार्की, क्वीन मॉब, द विजन ऑफ जजमेंट, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। तो इसमें से जो पोम है द विजन ऑफ जजमेंट, ये शेले का वर्क नहीं है। द मास्क एंड एनार्की रिटन बाय पीबी शेले, क्वीन मॉब रिटन बाय शेले, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम आल्सो रिटन बाय पीबी शेले। तो ये विजन ऑफ जजमेंट किसने लिखा है? विजन ऑफ जजमेंट लिखा है लॉर्ड बायरन ने। अगर हम देखें यहाँ पे तो मास्क एंड एनार्की शेले का ही वर्क है, क्वीन मॉब जो है वो भी शेले का वर्क है, बट द विजन ऑफ जजमेंट ये जो है सटारिकल पोएम रिटन बाय लॉर्ड बायरन 1821 ने बायरन ने इसे लिखा था इन रिस्पॉन्स ऑफ रॉबर्ट साउदेस panegyric poem of same name concerning the death of King George III. Okay. Next question देख लेते हैं। The Princess Medley by Tennyson is a lyric, elegy, narrative, dramatic monologue. So the correct answer is a narrative poem है। Alfred Lord Tennyson का The Princess Medley is a long narrative poem that tells the story of Prince Floriana की story है and Princess Ida की Prince Florian and Princess Ida who establishes a women's university where men are forbidden। मतलब लॉर्ड टेनिसन की ये प्रिंसेस मेडली, ये जो लॉन्ग नरेटिव पोएम है, इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि प्रिंस फ्लोरियन और प्रिंसेस इडा मिलकर एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं जहां पे मर्दों का आना फॉरबिडन है। द पोएम एक्सप्लोर द थीम ऑफ वीमेन्स राइट, विमेन एजुकेशन एंड जेंडर रूल्स। नेम द प्ले राइट हु हैज रिटन लॉरेन साहेब। लॉरेन साहेब ये बहुत फेमस वर्क है गुरुचरण दास का। गुरुचरण दास ने लिखा था लॉरेन साहेब, वेल नोन हिस्टोरिकल प्ले रिटन बाय गुरुचरण दास, ड्रामेटाइज द स्टोरी ऑफ हेनरी लॉरेंस, अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी। नॉन फिक्शन वर्क भी उन्होंने लिखे, इंडियन अनबाउंड, अ पर्सनल इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द ग्लोबल इंफॉर्मेशन एज। देन डिफिकल्ट ऑफ बीइंग गुड 2009 में लिखा था। कामा द रिडल ऑफ डिजायर, अनदर सॉर्ट ऑफ फ्रीडम। प्ले भी इन्होंने लिखे गुरुचरण दास ने। मीरा, संत मीराबाई पे, अ फाइन फैमिली, अ नॉवेल ट्रेसिंग द पंजाबी फैमिली। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज कंपोज द लिरिकल ड्रामा हेलास। हेलास नाम का लिरिकल ड्रामा किसने कंपोज किया था? लॉर्ड बायरन ने, शेले ने, वर्ड्सवर्थ ने, कीट्स ने। बहुत बार हम कीट, शेले एंड वर्ड्सवर्थ, शेले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स में, बायरन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। और एक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट
की पोम्स, बायरन की पोम, शेले की पोम्स, वर्डवर्थ की पोम, और एक राइटर है जो इनके से साउदे की पोम। थोड़ा सा जब हम रोमांटिक पोएट्री को लिखते हैं कि इतने सारे पोएम्स के टाइटल है, समझ में नहीं आता कि कौन सा, तो आप एक आपके नोटबुक पे अलग से है ना शेले का एक सेक्शन बनाओ, वर्डवर्थ का, बायरन का और किट्स का, और वो पर्पसफुली दिमाग में रखो कि कौन सा पोएम किसका है, क्योंकि लूसी पोम्स वर्ड्सवर्थ के है, वोट टू नाइटिंगेल वर्क किसका है, वोट टू ग्रेशियन आर्न किसका है। बहुत बार हम कंफ्यूज होने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि सारे वर्क वर्ड्सवर्थ के हैं क्या। सो शेले के वर्ड्स को आपको बहुत अच्छे से करना है, किड्स के वर्क्स को, ठीक है। हेलास इज अ लिरिकल ड्रामा रिटन बाय पीबी शेले। हेलास नाम का शेले ने एक लिरिकल ड्रामा लिखा था 1821 में। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिफ्लेक्ट द शेलेस पैशनेट सपोर्ट फ्रॉम फ्रीडम रिवोल्यूशन। द प्ले इज नोन फॉर इट्स लिरिकल ब्यूटी एंड एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेराइट हु कंपोज द प्ले अ वुमन किल्ड विथ काइंडनेस। किसने लिखा था ये? फ्रांसिस बियोमेंट एंड फ्लेचर, थॉमस किड, थॉमस हेवुड। तो वुमन किल्ड विथ काइंडनेस लिखा था थॉमस हेवुड ने। टाइटल है इसका वुमेन किल्ड विथ काइंडनेस, रिटन बाय थॉमस हेवुड, पब्लिश इन 1607। डोमेस्टिक ट्रेजेडी है ये, इसका सब जानरा है रेनेसा ट्रेजेडी। इसकी सेटिंग रखी है रूरल इंग्लैंड में अर्ली 17th सेंचुरी में। प्रोज एंड वर्स टिपिकली एलिजाबेथन जोकोबियन ड्रामा। इसमें क्या होता है, द प्ले जो है रिवॉल्व्स अराउंड द जॉन फ्रैंकफोर्ड नाम का कैरेक्टर है, वेल जेंटलमैन है, उसकी वाइफ है एन। एन हैज एन अफेयर विथ वेंडॉल, वेंडॉल के साथ एन का अफेयर है। एंड ट्रस्टेड गेस्ट इन द फ्रैंकफोर्ट हाउसहोल्ड, एक गेस्ट आया हुआ है वेंडॉल जिसका फ्रैंकफोर्ट के बीवी का अफेयर है। एंड व्हेन जॉन्स डिस्कवर द अफेयर, जब जॉन को पता चलता है कि मेरी वाइफ का वेंडॉल के साथ अफेयर है, इंस्टेड ऑफ पनिशिंग हर वायलेंटली, उसको पनिश करने की जगह पे वो क्या करता है, ही बैनिशेस एन टू अ सेपरेट हाउस, उसको एक सेपरेट हाउस में रखता है, अलाउइंग हर टू लिव विद द डिग्निटी बट अवे फ्रॉम हर फैमिली। मतलब वो डिग्निटी उसको बताता नहीं, उसको जलील नहीं करता है, उसको डिग्निटी के साथ बट अलग से अपनी फैमिली से दूर रखता है। एंड फील्ड विद द गिल्ट एंड रिमोर्स, उसको बुरा लगने लगता है। स्टार्व्स द हरसेल्फ एंड डाइज सीकिंग फॉरगिवनेस। फ्रैंकफोर्ट फॉरगिव हर ऑन हर डेथ बेड, और फ्रैंकफोर्ट उसको मरने तक देखने नहीं जाता है और बोलता है, मरने के बाद उसको लगता है द काइंडनेस वो दिखाता है, अल्टीमेटली किल्स हर। इसीलिए इसका टाइटल भी देखो, अ वुमेन किल्ड विथ काइंडनेस। Name the celebrated actor who played the leading role in the first production of John Osborne's The Entertainer, 1957. Peter Brook, Laurence Olivier, A.I. Pacquiao, Robert De Niro. So the Laurence Olivier. Next question, which of the following statement hold true in regard to the sentimental comedy? पहले तो हमें comedy के types, comedy of manners, sentimental comedy, okay, all these we should know. तो sentimental comedy होती क्या है? तो देखते हैं ऑप्शन, इट इज अ ड्रामेटिक कंपोजिशन विच सटायराइज द मैनर्स एंड द अफेक्शंस of the class. It is a dramatic composition that focus on character, each of them representing time personality. It is a dramatic composition that depict how seriously young people take love and how foolishly it makes them behave. Okay, so हमारा correct option ये हो जाएगा. It is a species of dramatic composition in which the virtue of private life are exhibited rather than the vice exposed and the distress rather than the fault of mankind make our interest in that piece. सेंटिमेंटल कॉमेडी पॉपुलर हुई थी 18th सेंचुरी में, आरबी शेरिडन ने भी लिखी है। सेंटिमेंटल कॉमेडी वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट द रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स के खिलाफ एक इसका फीडबैक देते हुए। इट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब द हियर, जैसे कि हम देख लेते हैं। तो हमारी जो ये सेंटिमेंटल कॉमेडी फोकस करती थी वर्चू एंड मोरालिटी पे, फोकस ऑन फिथॉस एंड ह्यूमन डिस्ट्रेस, बिलीफ इन इनहेरेंट गुडनेस। नेक्स्ट, आई रिकॉग्नाइज दैट इज हीरोइन इज अ लिटिल प्रिग एंड इट्स हीरो पोम्पस एस गधा ऐसे नहीं। आई रिकॉग्नाइज दैट इट्स हीरोइन इज अ लिटिल प्रिग एंड इट्स हीरो अ पोम्पस एस, बट आई डू नॉट केयर about which novel of Jane Austen this statement made. Jane Austen this statement made by the Somerset Maugham. Pride and Prejudice, Northanger Abbey, Sense and Sensibility, Mansfield Park. तो correct option है हमारा Mansfield Park. Next, in which year
was R.L. Stevenson Treasure Island published? 1893, 1886, 1883, 1896. करेक्ट ऑप्शन इज 1883. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, बहुत अच्छी बुक है, पढ़ लो. आई हैव दैट वन. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन क्लासिक एडवेंचर नॉवल ट्रेजर आइलैंड वाज फर्स्ट सीरियलाइज इन चिल्ड्रंस मैगजीन में पहले ये आई थी. यंग फोक फ्रॉम 1881 to 1882 अंडर द टाइटल द सी कुक और द ट्रेजर आइलैंड. इट वॉज देन पब्लिश एज अ बुक फॉर्म में ये पब्लिश हुई 1883 में और 1883. Next, who among the following theorists has written an affective economics? Franz Moretti, Bruno Latour, Sarah Ahmed, Miguel Thrift. Correct answer is Sarah Ahmed. Sarah Ahmed is a prominent scholar whose work extensively explored the affective economics for influential book, The Cultural Politics of Emotion. Develops the deeply into how emotions circulate, and वो argue करती है emotions are not merely individual feeling but are socially and culturally constructed. Next, demythologizing is a term associated with the work of demythologizing. Claude Lévi-Strauss, Fernand de Saussure, Rudolf Bultmann, Frederick, how I pronounce it, Schlesinger-Wasser. Rudolf Bultmann डीमाइथोलाइजेशन से रिलेटेड है, डील करते हैं. वॉज अ जर्मन न्यू टेस्टमेंट स्कॉलर है, थियोलॉजिक है, मोस्ट फेमस एसोसिएटेड कंसेप्ट विद द डीमाइथोलाइजेशन. उन्होंने इसमें कहा था न्यू टेस्टमेंट व्हाइल कन्वेइंग प्रोफाउंड दिस ही एक्सप्रेस माइथोलॉजिकल लैंग्वेज दैट इज नॉट लॉन्गर कॉम्प्रिहेंसिबल टू मॉडर्न पीपल. Who is widely regarded as a key figure in the development of post-Marxism and co-authored Hegemony and Socialist Strategy? Louis Althusser, Salzau, Antonio Gramsci, Lacan. So the correct option is Ernesto Lacan. Ernesto Lacan is widely recognized as the key figure of the post-Marxism में आते हैं, and उनके seminal work है Hegemony, Socialist strategy towards radical democratic. Next, which of the following method is oldest for teaching English language? The bilingual method, the grammar translation method, the direct method or situation method? So correct option, the grammar translation method है, पुरानी हो गई, oldest मानी जाती है, traditional method मानी जाती है. Okay, translation learner translate the text from the target language, grammar rules and the vocabulary list. Next question, in the area of theory and research known as second language acquisition, the classroom is considered an ideal model of research, a site of no use, or what? So the correct option is here, an experimental laboratory. In second language acquisition, SLA research, the classroom is often viewed as the control environment where the various teaching methods, material and learning strategies can be tested. Okay, so here हमारा हो जाएगा आंसर यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी. गिव मी अ मिनट गाइस. सो लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन विच ईयर डिड द इंडियन एजुकेशन कमीशन, इसके पहले मैंने वीडियो बनाई जिसमें मैंने DS कोठारी और उनके कमीशन के बारे में पढ़ाया हुआ है. अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो वीडियो, आप देख लो. तो इन विच ईयर डिड द इंडियन इकोनॉमिक कमीशन, द 6th कमीशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ DS कोठारी सबमिट इज रिपोर्ट. कौन सा ईयर था वो? 1956, 1966, 1976, 1986. सो करेक्ट ऑप्शन इज 1966. कोठारी कमीशन आया था 1964 में. क्या रिकमेंडेशन थे? एक तो उन्होंने 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर बनाया, कॉमन स्कूल सिस्टम, 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला, फोकस ऑन साइंस एंड मैथ्स की बात की थी, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस विद द मॉरल एजुकेशन, देन द वोकेशनल कोर्सेज सेकेंडरी लेवल पे स्टार्ट करने चाहिए, टीचर इंप्रूवमेंट के लिए टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, एजुकेशनल रिसर्च में इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी आनी चाहिए.
Next question, the great object of British government ought to be the promotion of European literature and science among the native of India. All fund appropriated for the purpose of education would be the best employer on English education alone. Who made the comment given above? Okay, देखो, एक तो ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ टू बी द प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर साइंस अमंग द इंडियन नेटिव्स, एंड जो भी ऑल फंड्स है अप्रोप्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन विल बी बेस्ट एम्प्लॉयड एंड एजुकेशन इन इंडियन गवर्नमेंट. किसने कहा था ये कहा था लॉर्ड मेकाले. दिस कोट इज फेमस दैट लॉर्ड मेकाले's मिनिट ऑन इंडिया which is delivered in 1835. Next question, which of the following is true in the context of new criticism? It follows the tradition of historical criticism, the main law of new criticism, the distinct procedure of new criticism explanation, or the distinction between literary genre does play an essential role in new criticism. तो क्या सही है? थर्ड ऑप्शन हमारा सही है. The distinctive procedure for new critique is explication. एक्सप्लिकेशन, क्लोज रीडिंग, टेक्सचुअल एनालिसिस, फॉर्मल एनालिसिस की बात करते हैं. न्यू क्रिटिसिज्म एक कोर आइडिया था न्यू क्रिटिसिज्म का. इट इन्वॉल्व्स अ डिटेल लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट. Francis Bacon's The Advancement of Learning attempted to draw a distinction between two kinds of truth, which are this. फ्रांसिस बेकन का वर्क है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसमें दो अलग अलग डिस्टिंक्शन की बात की है काइंड्स ऑफ ट्रूथ में. तो वो क्या है? थियोलॉजिकल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ इज द करेक्ट. पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है. द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605 में फ्रांसिस बेकन ने इसे लिखा था. डिस्टिंग्विश करता है टू मेन सोर्सेस ऑफ नॉलेज ट्रूथ के. एक तो है डिवाइन फिलोसॉफी, थियोलॉजिकल ट्रूथ, और दूसरा है नेचुरल फिलोसॉफी, दैट साइंटिफिक ट्रूथ. नेक्स्ट, I shall be ambitious to have it said of me that I have brought philosophy out of closet and library, school and colleges, to dwell in club and assembly, tea table and coffee houses. To whom this attribute famous statement? So correct option is Joseph Addison. Because he made his declaration, The Spectator, a daily publication, he co-founded with the Reacher. Still के साथ उनका ये आया था. The quote reflect करता है ambition to make the philosophy. Next question, an essay on principles of human action was written by. An essay on principles of human action लिखा था हैजलिट ने. An essay on principles of human action 1805 में हैजलिट ने इसे लिखा था, और ये है उस essay की जानकारी. अब वीडियो पॉज करके इसे डिटेल में पढ़ो. Next question, which of the following is false about Frederick Douglass? फ्रेडरिक डगलास की ऑटोबायोग्राफी बिलोंग करती है ट्रेडिशन ऑफ फुगिटिव स्लेव एंड नरेटिव पॉपुलर. He provided the first person account of his life spent in slavery. He was a famous as an orator dedicated to a black liberation movement, and he wrote up from the slavery. तो क्या ढूंढना था हमें? फॉल्स स्टेटमेंट. अप फ्रॉम स्लेवरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बुकर डी वॉशिंगटन, नॉट द डगलास. फ्रेडरिक डगलास के कौन से वर्क है? नरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक डगलास एंड अमेरिकन स्लेव, माय बॉन्डेज एंड माय फ्रीडम, द हीरोइक स्लेव, व्हाट टू द स्लेव इज द 4th of July, लाइफ एंड टाइम ऑफ फ्रेडरिक डगलास. Which of the following poems are written by Alexander Pope? The Dunciad, Moral Essay, Roger Hill, Cooper Hill, Absalom and Achitophel. Choose the correct. A, C, B, A, B, so A and B. Moral Essays and the Dunciad. The Dunciad is the famous mock epic satirical poem है अलेक्जेंडर पोप की. सेवरल वर्जन्स में पब्लिश हुई थी 1728 से 1743 और 1743. Then है moral essays. These are series of 4 verse essays. मॉरल एसेज एक सीरीज है 4 वर्स एसेज की बाय अलेक्जेंडर पोप, जो पब्लिश हुई थी 1731 एंड 1735. ओके, ग्रोंगर हिल इज द डिस्क्रिप्टिव टोपोग्राफिकल पोम है जॉन डायर की. कूपर्स हिल इज द इन्फ्लुएंशियल टोपोग्राफिकल पोएम है जॉन डेनहैम की. एब्सलम एंड एक्टिफल ये तो जॉन डायडन का सैटिरिकल वर्क है. आइडेंटिफाई द प्ले रिटन बाय आसिम करीम बॉय फ्रॉम द फॉलोइंग. आसिम करीम बॉय का वर्क पहचान. द प्रिंसेस, द कैप्टिव्स, एन एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, अंकोर और डांस लाइक अ मैन.
तो डांस लाइक अ मैन ये वर्क उनका है, तो डी ऑप्शन यहाँ है और यहाँ है। तो ए और बी उनके वर्क है क्या, या बी सी एंड सी देख लेते हैं। बी सी डी इज द करेक्ट, 2 करेक्ट हो जाएगा। आसिफ करीम बॉय, द डोल ड्रमर्स 1960, द डम डांसर 1961, गोवा 1964, द हंग्री वंस 1965, द रिफ्यूज, सोनार बंगला एंड इनकलाब। Which of the following 2 plays were written by W.B. Yeats? The Land of Heart's Desire, Time and the Conveys, The Silver Daisy, और what should be the correct? तो W.B. Yeats ने कौन सा 2 प्ले लिखे हैं? तो A and D is correct. The Land of the Heart's Desire W. Yeats का प्ले है, एंड काउंटेस कैथलीन B. W.B. Yeats का, क्योंकि ईट्स की पोएम तो हम याद रख लेते हैं। द लैंड ऑफ द हार्ट्स डिजायर इज अ 1 एक्ट प्ले बाय W.B. Yeats जो परफॉर्म हुआ था 1894 में, एंड द काउंटेस कैथलीन ये वर्स ड्रामा है W.B. Yeats का, फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1892 में। टाइम एंड द कॉन्वेज ये है J.B. प्रिस्टले का, द सिल्वर टैजी सीन ओ कैसी का है, एंड द प्लो एंड द स्टार ये सीन ओ कैसी का है। Which among the following are true in the context of Chinua Achebe? चिनुआ अचेबे के बारे में क्या सही है? ए बी, ए सी डी, ए बी ई, ए बी सी और बी सी डी। ओके, तो यहाँ पे A, B, C is correct because Achebe is a Nigerian and the essay on abolition of English department by the Ngugi wa Thiong'o। So हमारा correct option तीसरा हो जाएगा A, B and C। He wrote Era of God and Things Fall Apart। His novelist as teacher is seminal essay in the context of African literature। And C, the name of the tribe he depicted in Things Fall Apart is Igbo। Identify the correct among the following। The Apology for Poetry was written by Sidney। Sir Philip Sidney wrote the Apology for Poetry as the counterblast to the Stephen Gosson's The School of Abuse। Stephen Gosson wrote the School of Abuse in euphemistic style। Sidney's style was characterized by neoclassical method। So the correct answer हो जाएगा A, B, C। Who among the following is true in the context of literary research? It is devoted to the enlightenment of criticism. It seeks to eliminate the work of art as reality। It has no connection with the proffered information। So A, B, D correct हो जाएगा हमारा यहाँ पे। Okay, read the above passage considered to be the death knell of the neoclassical criticism is attributed to. It ought to be the first endeavor of the writer to distinguish nature from the custom, or the which established because it is right from that which right only because it is established। अगर हम इसे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि डेडिकेटेड है सैमुअल जॉनसन। द कोट इज फ्रॉम द सैमुअल जॉनसन का प्रीफेस टू विलियम शेक्सपियर जो पब्लिश हुआ था 1765, उसका ये कोट दिया गया है। ठीक है। Which of the following is not a kind of sign as suggested by Charles Sanders Peirce? Icon, index, symbol, visual। So visual, Charles Sanders Peirce or the Percy, a key figure in semantics, proposed a triadic classification of sign based on the nature of 3 relationship। 3 तरह के उन्होंने बताए थे, एक था आइकॉन, दूसरा था इंडेक्स, तीसरा था सिंबल। सो आइकॉन, इंडेक्स एंड सिंबल। Who among the following is considered text as a site of struggle between authority and popular culture? किसने कंसिडर किया था टेक्स्ट को साइट ऑफ स्ट्रगल बिटवीन अथॉरिटी एंड पॉपुलर कल्चर? सो द करेक्ट ऑप्शन है हमारा मिकाइल भक्तेन। मिकाइल भक्तेन ने थ्योरी बताई थी पर्टिकुलरली रिलेटेड टू डायलॉजिज्म से, हेट्रोग्लोसी एंड कॉर्नेवालिस को। ये एम्फसाइज करते हैं डायनामिक एंड ऑफन कंटिन्यूअस इंटरप्ले ऑफ डिफरेंट वॉइसेस। Hudibras of Samuel Butler reflects on the revolt against Puritanism, Hellenism, Humanism, Anglicanism। So the Puritanism के खिलाफ था ये। पब्लिश हुआ था 3 पार्ट में 1663, 1664, 1678 और सटायरिकल मॉक इपिक था और इसे लिखा था हमारे वेरी फेमस सैमुअल बटलर ने। और इसका प्लॉट हुडिब्रस इस पॉपस प्यूरिटियन नाइट है एंड स्क्वायर है राल्फो एंड अपसर्ड एडवेंटिज्म पे।
तो ये राइम कपलेट था, हुडिब्रास्टिक वर्स में लिखा था, सटायरिकल मॉक पोएम था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द स्टील ग्लास। तो स्टील ग्लास के हमारे ऑथर है दैट इज जॉर्ज गैस्कोइन। is a satirical poem. It is notable from being one of the earliest English satire written in blank verse. In the poem of Gascoigne criticized the moral decay and social corruption. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले एंड लाइक करो एज वेल एज शेयर करो।